Hi, good morning, my dear student. Today we will continue your class 12th history class. Class 12th history class pre-board 2. My dear student, if you have remember that what we studied on your previous class, हम लोग वहाँ पे आपके प्री बोर्ड पेपर को सॉल्व कर रहे थे. हमने 1 to क्वेश्चन नंबर 1 to 16 1 mark क्वेश्चन सॉल्व किया. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां से क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 17 टू 22 तक हम सॉल्व करें. क्वेश्चन नंबर 17 टू 20, इस पे क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आप इसको देखिए. क्वेश्चन नंबर 17 है आपके प्री बोर्ड में. दिस इज योर प्री बोर्ड पेपर. सो क्वेश्चन नंबर 17 इज okay. Question number 17, that is paragraph based question. (17 to 19) case based or source based question. Question number 17 to 19 case based question. So 17 to 19 case based question. केस बेस्ड क्वेश्चन. तो ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन है, सो माय डियर, क्वेश्चन नंबर 17 to 19, that is, these are question, case based question. So that's why it feels to me that there is no need to explain. I hope that is also the 3 marks question, and you have to choose the answer in the paragraph or source which is given in your answer. I mean to say that question paper, this is your source based question. So that's why I will not, it feels to me that it should not be discussed, but what do you think, करना चाहिए? ओके, चलिए कर ही देते हैं. कह रहा है 17, रीड द फॉलोइंग, एक्सेप्ट द केयरफुली एंड आंसर एनी 3 क्वेश्चंस, एंड एक्सेप्ट फ्रॉम द Sutta Pitaka and the contains the advice given by the Buddha to a wealthy householder named Sigla. In 5 ways should a master look after the servant and the employees by assigning
assigning them work according to their strength, by supplying them with food and wage, by the tending them in the what? Sickness, by sharing dialysis with them, and by granting leave at time. In five, I mean to say that in five way would the clansmen look after the need of the Samans, those who have renounced the world, and Brahmans, by affection in act, the speech and mind, by keeping open house to them and supplying their worldly ends. There are similar instructions to Singla about how to behave with his parents, teacher, and wife. Option A. The Buddha's teachings have been reconstructed from stories found mainly in the Sutta Pitaka. B. Mainly in the Vinaya Pitaka, mainly in the Abhidhamma Pitaka, mainly in the Sutta Pitaka, mainly in the Jatak stories. Question है, the Buddha's teachings have been reconstructed from stories found mainly in which Pitaka? Answer is Sutta Pitaka. Answer 3 is right answer. Then B, question number B, the advice given by Buddha to a wealthy household named Sigla, which display the Buddhist teacher, the supernatural power, second the reason, third tolerance, fourth reason, and the persuasion. The question number C, in 5 ways should a master look after the servant and employees? By assigning them work according to so क्वेश्चन जो आपका डी है, अब 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पैराग्राफ है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। आई थिंक कि आप इसको पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को कर लेंगे, सेम वैसे ही करना आपको 1 to 1 देख करके। देन आफ्टर पेंटिंग्स, क्वेश्चन नंबर 19 को अगर आप देखें पेपर में प्री बोर्ड के, तो स्टडी ऑफ दिस पेंटिंग्स entitled Relief of Lucknow carefully and answered any 3 of the following question by choosing the correct option. Here one more thing which is very important, which I want to tell you, that please read instruction carefully. You have to read the instructions very carefully. आप लोग क्या है कि आंसर 3 का लिखना है और आपने आंसर लिखा 4 का। ऐसी कंडीशन में यदि आपने 3 की जगह 4 का आंसर लिखते हैं तो क्या होगा, इससे सीधा का सीधा आपका आंसर बदल जाएगा। इट मीन्स अगर गलत आप 4 लिखते हैं तो फिर एक तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, और दूसरी चीज़ कि टाइम के साथ साथ आप हो सकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन को गलत कर दें और फोर्थ को सही कर दें, तो एग्जामिनर के ऊपर हो जाता है कि वो क्या करेगा। इसलिए हमेशा ध्यान से इंस्ट्रक्शंस देखिए, उसके अकॉर्डिंग ही ऑप्शन उठाइए। ओके, कहता है आपको देखिए उसमें क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है, द साइज ऑफ द सिटी डू नॉट वर बिकॉज डोमिंगो पायस का है, विजयनगर का है, आप देखेंगे उसको मिल जाएगा। अब पैराग्राफ बेस पे अगर देखें तो सिटी ऑफ लखनऊ की बात करता है, और वहाँ पे जो रिवोल्ट के टाइम जो पेंटिंग्स बने थे उस पेंटिंग्स को द पेंटिंग रिलीफ ऑफ लखनऊ रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, कहता है कि द रिबील्स इज वायलेंट एंड ब्रूटिश इवन थ्रू दे रिमेन इनविजिबल इन द पिक्चर, इन द बैकग्राउंड यू कैन सी द ब्रिटिश रेस्क्यू फोर्स अराइविंग एज द saviors. Second, the British appear heroic, defending themselves against the attack of rebel. फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकेंड ऑप्शन भी सही है।
थर्ड कहता है कि द अर्ज ऑफ द वेंजनेंस ऑफ द रेट्रीब्यूशंस वाज एक्सप्रेस्ड इन द ब्रूटल वे इन विच द रिबील्स वर एक्सक्यूटेड। देखिए कह रहा है द वेंजेंस ऑफ द रेट्रीब्यूशंस, थर्ड आंसर को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको थर्ड का आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से रिलीफ ऑफ लखनऊ वाज पॉइंटेड इन कब बना, 1859 में, बुक में साफ साफ है आपके, आप वहाँ से देख सकते हैं। सी का है एट द सेंटर ऑफ द कैनवास एट द ब्रिटिश कैम्पबेल एंड हैवलॉक द gesture of the hand of those around lead the spectre's eyes towards the center. Bragg and Havelock, Outram and Barker, Havelock and Cunningham, Cunningham and Outram and Barker, that is the right answer. और इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका शुरू होता है 3 मार्क्स के, इसको आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22, 23, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 22, 23, 3 marks question. It's also 3 marks. ये भी 3 मार्क्स के थे और ये भी 3 मार्क्स के हैं। इसमें स्पेस बेस्ड क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का था। मार्क्स मिलेंगे। अब यहां पे आपको लिखना है, आपको प्रॉपर आंसर देना है। जैसे कौन कौन से क्वेश्चन है देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है कि दिस इज अ स्टेटमेंट मेड बाय वन ऑफ द बेस्ट नोन एपिग्राफिस्ट ऑफ द 20th century, डीसी सरकार। द स्टेटमेंट ऑफ डीसी सरकार, क्या कहते हैं डीसी सरकार? There is no aspect of life, culture and activities of the Indians that is not reflected in inscriptions, कहता है कि there is no aspect of life, culture and activities of the Indians that is not reflected in inscriptions. Discuss. को डीसी सरकार कहते हैं कि अब यहाँ से मैं इसको मिटाता हूँ, अब क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन को पहले आप देखिए, स्टेटमेंट लिखिए डीसी सरकार का, देयर इज नो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, देयर इज नो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ culture and activities, culture and activities there is no aspects of life, culture and activities of the Indians that is not reflected in inscriptions. अब यहां पे 2 चीजें हैं, कह रहे हैं लाइफ, कल्चर और एक्टिविटीज। इंस्क्रिप्शंस पे इन चीजों में इनके बारे में बात नहीं करते। अगर आपको याद होगा माय डियर स्टूडेंट, लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन, ये आपका टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शंस। क्या क्या लिमिटेशंस हैं, उस पर एक लिमिटेशंस ये भी है कि इंस्क्रिप्शंस
only gives us information about gives us information about king's opportunities so my dear again I am going to read the question which is given in your pre-board to question number 20. This is a statement made by one of the best known epigraphists of the 20th century, D.C. Sarkar. There is no aspect of life, culture, and the activities of the Indians that is not reflected in inscription. Discuss. Okay, my dear student, if you have remember where I told you about द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन और लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन में हमने इन चीज़ों पे बात किया था। हमने लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन जब आपको बताया था तो मैंने कहा था कि लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शंस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सिर्फ राजा की अपॉर्चुनिटीज ही दिखाई जाती है। राजा अपने बारे में जितनी बढ़ा चढ़ा के वर्णन करता है, उसके लेखकों के द्वारा उसका जितना मान मर्दन और मान को जितना बढ़ा चढ़ा के लिया जाता है, मान मर्दन की जगह उसको जितना दूसरे राजा पराजित राजा के मान का मर्दन और उस राजा को जिस राजा के बारे में इंस्क्रिप्शंस लिखा जा रहा है या जो राजा अपना इंस्क्रिप्शंस लिखवा रहा है उसमें इसकी विजयों का उल्लेख, उसकी पर्सनल क्वालिटी का उल्लेख, उसके जो राज्य में हुए लोक कल्याण के लिए मंदिर कितने बने इनका उल्लेख, इन्हीं चीज़ों का होता है। और इसके अलावा रॉयल पैलेस रॉयल फैमिली के बारे में उल्लेख होता है। यही क्वेश्चन है डीसी सरकार का कि इन द इंस्क्रिप्शंस देयर इज नो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कल्चर एंड एक्टिविटीज ऑफ द इंडियन दैट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन इंस्क्रिप्शंस। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग my dear student. In India during ancient time a lot of inscriptions that was found, that was explored, and on the basis of that we can say that it is only the praises of the king. राजाओं की स्तुतियां हैं, राजाओं के वर्णन है, राजाओं के लिए जो बातें कही गई हैं वो सारी चीज़ें इसमें संकलित है। तो ये सभी कुछ जो राजाओं के बारे में डिटेल किया जा रहा है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट हियर वन मैटर विच यू शुड पॉइंट आउट, आपको करना चाहिए कि इसमें कहीं भी सामान्य जनमानस की चीज़ों को उल्लेख नहीं किया गया है। लोगों के व्यवहारिक जीवन कैसे थे, लोग सामान्यतः लाइफ को कैसे जीते थे, इन चीज़ों का उल्लेख यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस में हमें किसी भी इंस्क्रिप्शंस में हमें प्राप्त नहीं होता है एक्सेप्शनल को छोड़ के। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि अगर आप बात करें, यू कैन आल्सो ऑब्जर्व योर बुक पेज नंबर 48, फर्स्ट बुक पेज नंबर 48, द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। पहले लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शंस क्या हो सकते हैं कि 1000 इंस्क्रिप्शंस हैव बीन डिस्कवर्ड, नॉट ऑल हैव बीन disappeared, published and translated. Besides, many more inscriptions must have been existed which have not survived, that must the review of time. So what is available at the present is probably only a fraction of what was inscribed. There is another perhaps more fundamental problem. Not everything that we may consider politically or economically significance was necessarily recorded in inscriptions. For instance, routine agriculture practices and the joy of sorrow of the daily existence find no mention in the inscriptions. That is what I am saying. My dear student, यही आपको लिखना है कि there is another perhaps more फंडामेंटल प्रॉब्लम। अब जो डीसी सरकार का क्वेश्चन है कि जो लाइफ के चीज़ें हैं, जो किन चीज़ों की बात डीसी सरकार कहते हैं,
डीसी सरकार कहते हैं कि देर इज नो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कल्चर एंड एक्टिविटीज ऑफ द इंडियंस दैट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन इंस्क्रिप्शन, दैट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन इंस्क्रिप्शंस। तो कहता है कि दैट इज द प्रॉब्लम, कहता है परहैप्स मोर फंडामेंटल प्रॉब्लम, दैट इज द मेन प्रॉब्लम विथ इंस्क्रिप्शंस, दैट नॉट एवरीथिंग दैट वी मे कंसीडर, हम उन चीजों को नहीं ले सकते। जैसे क्या क्या कहता है, द politically or economically significant was necessarily recorded in inscriptions. For instance, the routine agriculture practice and the joy and the sorrow of daily existence find no mention in inscriptions, which focus more often than not on grand, unique events. Besides, in content are the inscriptions almost invariable projects. The perspective of the persons who commissioned them as such, they need to be the adjusted with other perspectives so as to arrive at a better understand of the my dear student what I am telling. चलिए डीसी सरकार की उन चीज़ों को एग्जामिन करते हैं। इंस्क्रिप्शंस में क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या नहीं। दो चीज़ों पे, पॉलिटिकली कंडीशन, पॉलिटिकल जो राजनीतिक स्थिति है, पॉलिटिकल पॉलिटिकली कंडीशन प्लस इकोनॉमिकल कंडीशन that was mentioned, but the common people life, common people life, their cultural activities, their customs, उनके विश्वास, इन सारी चीजों को हम क्या पाते हैं, देयर एब्सेंट पाते हैं, हमें ये दिखाई नहीं देता। सो दैट्स व्हाई मिस्टर सरकार claim that inscriptions only gives us information about only the specific information like the political and economical. As you know that the political conditions that belong to the royal families and king also, and as far as the matter of economy, it is the backbone of the any state. So that's why it was also mentioned that what is the taxes, what was the revenues, what was the and such type of other taxes. तो दो चीजों को हमें दिखता है एक्सेप्ट सम इंस्क्रिप्शन। अगर अशोक के इंस्क्रिप्शंस को छोड़ दें तो अशोक भी उसमें क्या लिखता है, राजाज्ञाएं हैं, दैट वाज प्रोक्लेमेशन ऑफ किंग, राजा की घोषणाएं हैं, बट नो अदर एक्सेप्ट इट, वो आदेश है। लेकिन जनता कैसी है और जनता क्या कर रही है इसके बारे में उसमें कोई उल्लेख नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द स्टेटमेंट ऑफ डीसी सरकार दैट वाज एब्सोल्युटली राइट एंड ठीक है। ओके, आई थिंक आप लिख सकते हैं। देखिए इसमें 3-4 पॉइंट्स आप आराम से लिख सकते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के। तो फर्स्ट आप लिखेंगे कि द लिमिटेशन ऑफ आई मीन टू से दैट व्हाट द क्लेम बाय डीसी सरकार दैट वाज राइट बिकॉज द इंस्क्रिप्शंस ओनली एक्सप्लेन्ड अबाउट द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द स्टेट। सेकेंड, इन द डिफरेंट inscriptions, the common people life and their conditions that was not explained, and so in the absence of that information we don't know about the society during that time which was habitant, जो उस समय स्थापित थी, जो निवासित थी, उनके बारे में हमें पास कोई सूचना नहीं है। तो ये हम लिख सकते हैं। और थर्ड पॉइंट पे हम लिख सकते हैं कि लिमिटेशंस जो है जो इन किताबों में जो इन इंस्क्रिप्शंस में राजाओं के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो राजाज्ञाएं हैं, जो राजा के आदेश हैं, और यहाँ भी जो कंडीशंस हैं, जो कस्टम्स हैं, जो ड्रेसेस हैं, उनके बारे में सूचनाएं नहीं मिलती। तो ये आप इनके आधार पर बात एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप 3 पॉइंट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है द नोबिलिटी। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है जिसपे हम लोग बात करेंगे द नोबिलिटी। अब नोबिलिटी पे बात करेंगे हम लोग। नोबिलिटी
21, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है नोबिलिटी। द नोबिलिटी वॉज रिक्रूटेड कॉन्शियसली बाय द मुगल रूलर्स फ्रॉम द डाइवर्स एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप जस्टिफाई द नोबिलिटी। द नोबिलिटी, इसको आप द नोबिलिटी को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? ये किस नोबिलिटी की बात कर रहा है? मुगल नोबिलिटी की बात कर रहा है। तो मुगल नोबिलिटी को आसानी से समझने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको बुक में उन पॉइंट्स को क्या करना है? सॉर्ट आउट करना है, निकालना है। इसमें नोबिलिटी की बात करता है। पहले मुगल नोबिलिटी के बारे में समझ लीजिए। नोबिलिटी के बारे में हमें सबसे अच्छा इंफॉर्मेशन, बेस्ट इंफॉर्मेशन given by Mughal Chronicles and book which was written by court poet और राइटर्स। अब यहाँ पे पहला पॉइंट आप इसको लिख सकते हैं। हमें मुगल नोबिलिटी के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? मुगल क्रॉनिकल्स। और फिर मुगल क्रॉनिकल्स के अलावा हमें कहां से मिलती है? उन बुक्स से, उन किताबों से जो मुगल काल में लिखे गए थे, जो राइटर्स और कोर्ट पोएट ने लिखे थे। तो पहला पॉइंट आपको मिल गया कि आप किस तरीके से बताएंगे मुगल नोबिलिटी को। आई मीन टू से दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द मुगल नोबिलिटी। अब यहाँ पे दो चीजें और व्हाट मुगल नोबिलिटी को बताने के लिए अब मैं इसको बता रहा हूं। आई होप यू आर गेटिंग। अब मुगल नोबिलिटी को बताने के लिए एक और बुक है, उस बुक पे जाइए। चारे चमन, चंद्रभान ब्राह्मण, ब्राह्मीण बुक नेम चारे चमन। ये जो बुक है चंद्रभान ब्राह्मण की, चारे चमन, आई होप आपको इस बुक के बारे में पढ़ना चाहिए। Thus, I mean to say that the little bit information about this book given in your NCERT book। नीचे आप सोर्स में देखेंगे तो नीचे आपको दिखेगा चारे चमन ब्राह्मण के स्टेटमेंट। यहाँ पे चारे चमन ब्राह्मण इस बात का उल्लेख करते हैं कि किस तरीके से मुगल नोबिलिटी और कौन कौन लोग मुगल नोबिलिटी के पार्ट हैं। माय डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी स्ट्रेंज मैटर and interesting also that in the Mughal nobility there were different groups member. They were belongs to the different country also, Turk, Tajik, Iranian, Afghan, Maratha, Rajput, Sheikh Jada, Indian Muslims। आई मीन टू से दैट कितने ग्रुप हो गए? मैं यहां पर लिखता हूं, अगर आप काउंट करिए तो नाम कहते हैं तुर्क, ताजिक, अफगानी, अफगान्स, मराठा। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ईरानियन, then after Rajput, Indian Muslims, etc। कहता है ये अलग
क्या थे? मुगल नोबिलिटी के पार्ट थे। इंडियन मुस्लिम्स एंड हिंदू आल्सो ETC। अब कहता है, अब आप इतने से ही काउंट करिए, चंद्रभान ब्राह्मण ने अपनी बुक चारे चमन में इस बात का डिटेल किया, उल्लेख किया है कि इन द मुगल नोबिलिटी देयर वर द डिफरेंट ग्रुप्स, दे वर पार्ट ऑफ द मुगल नोबिलिटी। लाइक गुलदस्ता, कहते हैं कि मुगल नोबिलिटी में क्या है, ये लोग एक गुलदस्ता कितना है, गुलदस्ता आपने देखा होगा, गुलदस्ता फूलों का एक, इसमें एक गुलदस्ते में कई तरह के फूल हैं, तो वो कहते हैं कि मुगल नोबिलिटी लाइक दैट गुलदस्ता, बिकॉज इन द गुलदस्ता, जस्ट लाइक इन गुलदस्ता देयर वर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, सेम इन द मुगल नोबिलिटी द different ethnic groups they were member of मुगल नोबिलिटी। आई मीन टू से दैट कि जो मुगल जो मुगलों का सामंत वर्ग था, उपराजा का वर्ग था, उसमें बहुत सारे ग्रुप्स के लोग थे, वर्ग के लोग थे जिन लोगों ने इसको, तो इनके आधार पे भी आप क्या कर सकते हैं, इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। माय डियर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स एंड ऑब्वियसली कि ये जो चीजें हैं इसके आधार पे आप मुगल नोबिलिटी को एक्सप्लेन करें। इसके अलावा जब भी मुगल नोबिलिटी आप एक्सप्लेन करें तो मुगल नोबिलिटी में इनको जोड़ते हुए मनसबदारी सिस्टम पे जरूर थोड़ा सा लिखिए, मनसबदारी सिस्टम पे थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर करें। ओके, वी विल एक्सप्लेन द मनसबदारी सिस्टम एंड अगेन वी विल एक्सप्लेन हैविंग रीड योर बुक वेयर व्हाट द इंफॉर्मेशन गिवन देयर अबाउट द मुगल नोबिलिटी। लेकिन आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।